आप इस वीडियो में एक शख्स को देख पा रहे हैं। यह शख्स कोई और नहीं, यह वह शख्स है जिसे 5 मिनट की देरी से पहुंचने पर अपराधी मान लेता है इसका मालिक। जी हाँ, आपको मैं एक ऑडियो सुनाना चाहूंगी जिसमें आप देख सकते हैं यह लड़का उनके घर में काम करता है और वो किसी कारण 10 से 15 मिनट लेट पहुंचने पर उसका मालिक उसे इतनी बुरी बुरी गाली दे रहा है जो आप भी नहीं सुन पाएंगे। બોલો સર તે શું કીધેલું? ઓકે હે તમે ગુસ્સામાં બોલ્યા અરે તને આજે સમજાવું જ જિંદગીમાં બહુ માણસો મળ્યા હશે. તને છે ને ગલતી કરીને જે હોશિયારી મારીને ટેવ છે ને બોમ્બેમાં રહેવા નહીં રાખું. યાદ રાખજે તું આ વાત. 1 લાખ રૂપિયા હારું છું રોજ. 1 લાખ રૂપિયા ખર્ચો કરીશ ને તું બોમ્બેમાં રહેવા લાયક નહીં. લઈ આવજે તારા બીજેપી ને તારા શિવસેનાના માણસોને. તું મને જવાબ આપે છે? 1000 વાર સમજાવીને કીધેલું રાજેશને જવાબ નહીં આપતો સામે. તે જે આજે કર્યું જ ને નિચ્ચર તને બોમ્બેમાં રહેવા નહીં દઉં. આ તું ગરીબ છે કરીને આજે તને ફોન બી કર્યો. મેં તો બીજો રાખી દીધો છે. 1 તારીખે તારો હિસાબ લઈને જજે. પણ એટલું યાદ રાખજે રાજેશને આવો જવાબ બીજી વાર આપ્યો ને તારી હસ્તી મિટાવી નાખી. મરી ચાલશે. ગણપતિ બાપા મને મારી નાખશે મને ચાલશે. પણ આજ પછી તને સમજાવીને કહું છું દુનિયાના કોઈ બી માણસને જવાબ આપજે, મને નહીં. ઓકે કરીને મને જો જવાબ આપ્યો ને તને બોમ્બેમાં રહેવા લાયક નહીં રહેવા દઉં. યાદ રાખજે આ તું વાત. તારા જેવા 5660 ને 20,000 રૂપિયા આપીશ. પણ તને બોમ્બેમાં અગર રહેવા દીધો તો બે બાપનો કા હું રહીશ કા તું રહેશે. બોલ કર તારો અવાજ. કોના પર નાચે તું બતાવ મને. તું શું સમજે શું તારી જાતને? થોડું ચડાવીને ઘરમાં ફરે જ, કીધેલું કામ કરતો નથી અને ઉપરથી નાટક કરે તું. સમજે શું તું તારી જાતને? મને બોલ ચાલ આજે બોલ બોલ તું. હે શું બોલું સાહેબ? જવાબ જુએ જ મને. પણ તમને કે શું બોલું? તારી હેસિયત શું છે મને એટલું કે બોમ્બેમાં? હેસિયત જ નથી ને. અને તારી પાસે બહુ કોઈ બીજેપી ને આ બધા છે એ બધાને મારો વર્ડ કહીને કહેજે મેં આવું કીધું. ચલ મારી સામે આવ, કોઈ બી આવો માવીનગરમાં ચાલ. હું શું કામ કહું આ બધું? અરે તારી તને જીવવા નહીં દો બોમ્બેમાં. ચૂપચાપ જેટલા ઘરે કામ કરવાની હોશિયારી છે ને તારી ઊભો ઊભો હમણાં ને હમણાં ખતમ કરી નાખીશ. હજી તને કહું છું, લાસ્ટ ટાઈમ કહું છું, તારે તો કામ પત્યું જ છે. તે છતાં મારા જેવા માણસ સામે બોમ્બેમાં અવાજ નહીં કરતો. હું બોમ્બેમાં જન્મ્યો છું ને બોમ્બેમાં મોટો થયો છું અને હું એવા એરિયામાંથી આવું જ ને 20, 25, 50 લાખ 2 લાખ 5 લાખ મારે માટે કંઈ નથી. હજી તને સમજાવીને આગળ બી કીધેલું 3 વાર, આ 4થી વાર કહું છું. મારી સામે નાટક કર્યું ને તને કોઈ મદદ કરવા નહીં આવે મારા સિવાય. તને બોમ્બેમાં રહેવા નહીં દઉં. તું નેતા બન, તારા નેતાની કરી દઈશ બધું. હજી એટલી ચિલ્લાર કહું છું તને, તારા બિહારના નેતાની દઈશ. તને રાજેશની હજી હેસિયત ખબર નથી. હોશિયારી અવાજ મારે જ ઓકે ઓકે નો. અરે અમાર જિંદગીમાં તાકાત લાવવાની પછી કોઈને ઓકે બોલવાનું. બાકી આ જે માણસ છે ને હજી એને ખબર નથી હું 10 દિવસ અંદર રહીશ. બાકી લોકોને શું હોય તકલીફ અંદર રહેવાની, હું 10 દિવસ અંદર રહીશ. સમજાયું? મારો બાપ બી પાછળ છે ને મારી પાસે એટલા કોન્ટેક્ટ છે. તારાથી તો જીતીશ જ ભલે હું મોટા સામે હારી જાઉં. એટલે બીજી વાર બોલતા ધ્યાન રાખજે ને તો એ જગ્યાએ જઈને કે તારી હેસિયત નહીં હોય અવાજ કરવાની. હરામજાદા જ્યારે 100-200 રૂપિયા જ્યારે એમને આપું જ ને ત્યારે મારી જાત પર આવે ત્યારે 2-5 લાખ ખર્ચો કરી શકું એટલી તાકાત છે. એટલે લાઈફમાં સમજીને કોઈને જવાબ આપજે. તને રિક્વેસ્ટ કરીને સવારના કીધેલું 11:15 આવ. ક્યાં ગયો તો તું? સાલા મારા બાપ પડી ગયો તો તું તારા બાપ ભરત પૈસા? એટલી બધી મસ્તી હતી 11 ને 5 બહાર મળે જ મારા બાપને. અરે તારી હેસિયત નથી જિંદગીમાં જેટલી કમાવાની એટલા મેં ખર્ચા છે. સમજી તું? જિંદગીમાં લાગતો નહીં મારી સાથે. હજી તને કહી દઉં લાસ્ટ ટાઈમ, મારી સાથે લાગવા પહેલા 1000 જણને લઈ આવજો તારી સાથે. એ બધાને હું જોઈશ. કહીનો ઓકે કે જ મને ઓકે.
તારી એટલી હેસિયત થઈ ગઈ મને ઓકે કહેવાની? હે બોલ. આવું છું, ઘરે આવું છું. તારી માને હવે તને હું જો કાલથી જિંદગી બતાવું તારી બોમ્બેની. બહુ મસ્તી છે ને તારી, બહુ નેતા બનવું, તારે બહુ ગાડી નાખવી, તારે બધું પૈસા કમાવા જ. બીજા બધા સાથે કરી લેજે, બધા તારી દબાતા હશે. તારા 5660 ને છે ને ઉભો ઉભો खरीदी सकूं છું बस। इन सब गालियों और इस अत्याचार के बाद यह लड़का इतना परेशान हुआ। यहाँ पर दो मालिक, एक मालिक जो उसे गाली पे गाली देते जा रहा है, उसे जान से मारने तक की धमकी भी दे रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसका एक दूसरा मालिक है जो उसके न्याय के लिए घर से निकलकर 7 से 8 घंटे पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता है कि उसे न्याय मिल सके। इन्हीं सब बातों को लेकर बात की धर्मेश जोशी से। देखिए क्या है यह पूरा मामला, यह खुद बताएंगे धर्मेश जोशी। सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। जिस तरह से आप बहुत सारी खबरों को सुनते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें भी सामने आती हैं जहां पर एक घर को चलाने के लिए जब कोई लड़का कहीं जाकर काम करता है लेकिन उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है और इस तरह के व्यवहार में वह कुछ एक्शन नहीं ले पाता क्योंकि उसे पता होता है उसके पास उतना पैसा नहीं है, उसके पास पावर नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं इस तरह के अत्याचार को सह लेता है। लेकिन कुछ ऐसे भी मालिक हैं जो अपने घर में काम करने वाले एक लड़के उस व्यक्ति के लिए उसके हक के लिए, उसकी हक की लड़ाई के लिए, उसे जो मिलना चाहिए उस हक के लिए लड़ने के लिए भी तैयार होते हैं। तो ये दो किस्म के मालिक होते हैं लोगों के। तो ऐसा ही एक मामला कांदिवली का आया है जो चर्चा का विषय बना। अगर उसका ऑडियो मैं आपको सुनाऊं तो आप भी कहेंगे ये क्या है, क्योंकि उस ऑडियो में जिस तरह से उसके घर में काम करने वाले उस लड़के को इतनी गंदी गालियां दी जा रही हैं इस वजह से क्योंकि वो 10 से 5 मिनट लेट पहुंचा अब मालिक के घर काम पर। तो क्या यह गाली देना सही है? इन सभी बातों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं धर्मेश जोशी जी। धर्मेश जोशी का नाम आपने काफी बार सुना होगा, राजनीति के लिए सुना होगा, समाज सेवा के लिए सुना होगा, लेकिन जब एक लड़के पे इस तरह का अत्याचार हुआ तो वो बिना सोचे, बिना अपना वक्त गवाए घर से निकल पड़े उसके हक के लिए और वो पहुंचे पुलिस स्टेशन। और एक पुलिस स्टेशन नहीं, 2 पुलिस स्टेशन में उन्होंने चक्करे काटे, कई घंटे उन्होंने अपने बर्बाद किए, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने वक्त नहीं बर्बाद किया है, उन्होंने किसी के हक के लिए घर से निकले हैं। तो इन्हीं सब बातों के लिए आज हम धर्मेश जी के पास पहुंचे। धर्मेश जी, आपने एक अच्छा काम किया, किसी की मदद के लिए आपने घंटों, आज के समय में कहते हैं पैसा नहीं लेकिन जो वक्त है वो बहुत ज्यादा कीमती है, उस वक्त के कीमती वक्त आपने दिया, लेकिन आप उस विषय पर बात करने से क्यों इनकार कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहला तो मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। समाज के अंदर इस तरह से आता है कि ये इस तरह का विषय को जज्बाती होके लोग देखते हैं और इसको ये समझते हैं कि मैं पॉलिटिकल इशू इसको कर रहा हूँ, मगर ये पॉलिटिकल इशू इसलिए नहीं है क्योंकि ये मेरा पर्सनल मामला है। क्योंकि ये जो लड़के के ऊपर हुआ, मेरे घर पे करीबन 12 साल से काम कर रहा है। जैसे हम लोग खाना खाने बैठते हैं तो वो हमारे बाजू में ही खाना खाने बैठता है, हमने कभी भेदभाव किया नहीं। ये सिर्फ बातें नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारे साथ बैठता है, खुद उनसे जब आप मिलेंगे तो आप पूछ लीजिएगा कि किस तरह से व्यवहार है। और उसको जिस तरह से गाली दिया है, पिछले 1.5 साल से ये सब हो रहा था और अनाप शनाप गंदी गालियां दे रहे। जो आप रिकॉर्डिंग सुनोगे तो उसमें मालूम पड़ेगा कि किस एक वेशी आदमी रहता है ना, उस तरह से गंदी गालियां दे रहा है। एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता हुआ आदमी इस तरह से अगर वो काम करेगा तो समाज के लिए एक ये डर पैदा कर रहा है कि हम बंद कमरों के अंदर कोई आदमी मेहनत करने आ रहा है तो उसको हम इस तरह से परेशान कर रहे हैं, गंदी गालियां दे रहे हैं। घर में वो इस तरह से एक्टिविटी करता है कि मैं तेरे को मारूंगा, ये करूंगा। जब उससे गंदी गालियां देनी रहती हैं उस इंसान को तो वो ये कहता है कि तू भाई मोबाइल अपने अंदर के बेडरूम में रख, फिर उसको जम के वो शिकायत करता है, गंदी गालियां देता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक पेट के लिए कोई भी इंसान, जैसे ये गरीब इंसान है, कोई अमीर इंसान यहाँ से फॉरेन भी जाता है या तो अदर स्टेट इंडिया के भी जाता है, तो मेहनत करना, पैसे कमाना और घर परिवार को चलाना, तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि कोई गलत काम है।
लेकिन क्यों वो भी एक इंसान है, वो भी कहीं से वहां तक पहुंचा है, तो वो इंसान क्यों उस इंसान को नहीं समझ पाते जब वो उनके यहाँ अगर काम कर रहा है तो अगर उसे कुछ चीजों में कमियां होती है तो इस तरह का व्यवहार उसके साथ क्यों किया जाता है? आपको लगता है और भी लोगों को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से आज आपने आगे बढ़ के उसे उस लड़ाई के, जिस तरह से उसे गलत चीजें उसके साथ हो रही थी उसे रोकने की आपने कोशिश की कि आगे उसके साथ ये ना हो सके, क्योंकि शायद वो आगे जाके कभी कुछ ऐसा करता भी नहीं कि वो सहता रहता, क्योंकि उससे रोजी रोटी से उसका घर चल रहा था। तो आपको लगता है और भी लोगों को जब किसी के ऊपर इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं तो उसे रोकने के लिए आगे आना चाहिए, जिस तरह से आपने अभी ये किया है? जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं ये पॉलिटिकल पार्टी या इस तरह से इशू लेके नहीं आया हूँ। एक कॉमन मैन के जैसे इसको मैं ये सब्जेक्ट को समाज के बीच में रख रहा हूँ। जैसे जो हमारे घर पे काम करता है, जिसको इस तरह से प्रताड़ना हुई है, उनके 3 छोटे बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं उनको, और जिस समय पे उसको गाली दी तो वो खाना खा रहा था। करीबन ये कॉल आया था 4:32 पे। तो उस समय पे उसने सुना 5 मिनट, 4.5-5 मिनट तक उसने गालियां दिए और जान से मार देने की धमकी दी है, और ये भी बोला है कि भाई मैं तुझे मुंबई महाराष्ट्र में रहने नहीं दूंगा, तू बिहार का है तो बिहार में भी तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ पर जिस गली से आया हूँ, मुंबई का पैदा हुआ हूँ, मैं जहाँ पर रहता था तो मुझे पहचानता नहीं है, मैं 10-20 लाख रुपया तेरे पीछे ऐसे ही बर्बाद कर दूंगा, मगर मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। ये कहाँ का न्याय है? इस तरह से प्रताड़ना मैं नहीं समझता हूँ कि ये अच्छी बातें है। कोई भी ओनर वो आम इंसान ही है। आज आप देखोगे मल्टी नेशनल कंपनीज के बड़े बड़े सीईओ, बड़े बड़े ओनर्स, वो सोने की थाली में नहीं खाते, सोने के नींव वाले नहीं खाते, वो भी हमारे जैसा एक कॉमन मैन के जैसा खाना खाते। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि किसी भी इंसान को इस तरह से गंदी तरह से गालियां देना, उसको जान से मारने की धमकी देना, और उसका पोजीशन ये हो गया था, लड़के का मैं नाम स्पष्ट नहीं कर रहा हूँ और जिसने किया उसका भी नाम स्पष्ट नहीं कर रहा हूँ, मगर उसकी छाती में दर्द होने लगा। जब उसने मुझे फोन किया तब वो मेरे परिवार को किया, तब वो रो रहा था कि मुझे इसमें से बचाइए, बहुत सारी तकलीफें हो गई है, अब मेरे से सहन नहीं होता, मुझे कुछ हो जाएगा। तो उसको मैंने यहाँ पर ऑफिस में बुलाया, उसने मुझे रिकॉर्डिंग दिया, मैंने पूरा सुना, तब जाके मैंने एक डिसीजन लिया कि भाई मैं पुलिस स्टेशन में जाके इसकी कंप्लेंट करूं। इसलिए इमीडिएट स्टेप लिया है क्योंकि उसने ये धमकी दिया था कि भाई कल का दिन तेरा, परसों मैं तुझे पुलिस स्टेशन में बुलाऊंगा। तो इस तरह से अगर वो पुलिस स्टेशन में बुलाता है, उसको चोरी का आरोप लगाता है, तो ये लड़का कहाँ पर जाएगा जो उसने कोई गुनाह नहीं किया है। सिर्फ 20 मिनट लेट आने से अगर उसको इतनी गंदी गालियां पड़ रही है, अगर उसने वहाँ पर 2-2.25 साल से काम कर रहा था, मेरे यहाँ पर 12 साल से, और हमारे कई लोगों के सर्कल में कॉमन ये बंदा काम करता है, तो हम हमारा घर भी छोड़ के जाते उसके ऊपर, कहीं बाहर गाँव जाते तो साफ सफाई के लिए चाबी देके जाते, हमारी कोई भी चीज़ आज तक मिसप्लेस नहीं हुई है। तो इसके ऊपर अगर चोरी का एलिगेशन लगा देवे या दूसरा कुछ करे, जैसे उन्होंने जब पुलिस स्टेशन में आए, जिसने ये सब ये मेड के सर्वेंट के ऊपर ये सब किया है, मैं सॉरी सर्वेंट बोल रहा हूँ, जो घर काम करने वाले बंदा है, इसके ऊपर ये अत्याचार किया है, उसने पहले ही आके पुलिस स्टेशन में एक स्टेटमेंट दिया कि उसने मेरी वाइफ के ऊपर नजर डाली। अब वो खुद 60 साल का है, तो मैं ये समझता हूँ जो उनकी वाइफ है, बहन जो है, वो करीबन 50-55 के आसपास तो हो गई। जहाँ पर माँ दादी के एज के लोग हैं और उनको इस तरह से ये आदमी एक 27 साल के बच्चे को जो बोलता है कि भाई नजर डाली, जिस समय पे हमारे पास आया था वो करीबन 14-15 साल का था। आज मेरे घर में भी बेटी है, तो उसको बहन के जैसा वो बात करता है, हमेशा बहन के जैसा वो बात करके उनसे पूरा व्यवहार करता है। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा झूठ बोल के एक गरीब आदमी को पुलिस स्टेशन में आके इतना बड़ा स्टेटमेंट देना, मुझे बहुत शर्म आ गई ये बात सुन के, जब उसने पुलिस में इस तरह से बयान दिया। तो जब आप पुलिस स्टेशन गए, आपने 2 पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे, पुलिस प्रशासन का किस तरह का रवैया, किस तरह से उनका सपोर्ट रहा है जब आप उनके पास इस मैटर को लेकर उनके पास पहुंचे, जब आपने उन्हें बताया कि किस तरह से एक लड़के को प्रताड़ित किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहला तो मैं जब पुलिस स्टेशन गया यहाँ के लोकल, तो मुझे ये बोला गया कि वो जहाँ रहता है तो उसका जुरिडिक्शन कांदिवली ईस्ट में आता है। तो मैं वहाँ गया तो उन्होंने जब मुझसे पूछताछ की तो पूछे कि भाई ये कौन सी जगह पे, कौन से लोकेशन पे ये कॉल्स आए थे,
तो बताया कि दानूकरवाड़ी और महावीर नगर के आसपास दानूकरवाड़ी है, वहाँ पर आया है। तो उन्होंने बोला आपको कांदिवली वेस्ट का ज्यूरिडिक्शन लगेगा, जहाँ पर क्राइम सीन हुआ है, कॉल आया है, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। तो उसके बाद जहाँ पर मेरे करीबन वहाँ पर गया तो 2-2.5 घंटे बिगड़ गए। फिर मैं यहाँ पर आया वापस, मैं सीनियर साहब से मिला कि भाई इस तरह से ये बातचीत है, उनको रिकॉर्डिंग सुना है। तो उससे पहले तो हम लोग ये सोच रहे थे कि भाई ये एक नॉर्मल केस है कि ये ऑनर अपने घर पे जो काम करता है उनको 2 शब्द गाली बिली दे देंगे तो ये कॉमन है। फिर जब मैंने उनको रिकॉर्डिंग सुनाया तब उनका भी होश उड़ गई कि भाई इस तरह से कोई इतना मारने तलक की धमकी देता है, रोज का 1 लाख रुपया खर्चा करेगा इसके पीछे, 10-20 लाख रुपया इसको मरवाने के लिए देगा। फिर उन्होंने उनके घर पे पुलिस भेजी, उनको पुलिस स्टेशन बुलवाया और उनके सामने ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया। 504 और 506 की कलम लगी हुई है। और ये सब चीजें मैं पॉलिटिकल लेवल से करूं क्योंकि उसने फोन कॉल्स के ऊपर ये बोला है, धमकी दी है कि भाई तुम्हारे पॉलिटिकल 2 पार्टी का नाम लिया है, मैं नाम नहीं लूंगा। मैं हमेशा ये सीखा हूं कि भाई कोई भी काम करो, अगर एक आप अच्छे कार्यकर्ता हो, जैसे मैं श्री गोपाल शेट्टी सांसद रतन, उनका विजन लेके मैं चलता हूं, तो जैसे वो एक ग्राउंड लेवल से ऊपर आया है उसी तरह से मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं भी एक ग्राउंड लेवल से आया हूं। मैं भी एक ये समझता हूं कि एक गरीब आदमी की क्या तकलीफें होती है। मैंने भी जिंदगी में 0 से प्लस हुआ हूं, यहाँ तक पहुंचा हूं, तो मैंने भी मजदूरी की है। तो मैं ये लड़के का मैं दुख समझ सकता हूं कि ये एक बहुत बड़ा अन्याय है और समाज में इसको बाहर लाना, मैं रिकॉर्डिंग वगैरह भी कोई चीज दे नहीं रहा हूं और किधर मैंने वो कुछ किया नहीं कि सामने वाले के ऊपर कुछ तकलीफ आए, मगर ये समाज को मैसेज जाना चाहिए। तो क्या इसी तरह से आप जो न्याय की लड़ाई है आपकी आगे भी इस तरह से जारी रहेगी? जी जारी तो रहेगी 110%, क्योंकि 2 दिन हो गए इस बात को और मुझे कई कॉल्स आ रहे हैं। मैं पॉलिटिकल फेवर नहीं ले रहा हूँ, मगर मुझे कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे कॉल्स आ रहे हैं कि जो भी वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए, मुझे मेरा नंबर, यानी मुझे जानते हैं मगर मेरा नंबर उनके पास नहीं है, कहीं ना कहीं से मेरा नंबर लेके मुझे कुछ कॉल्स आए हुए हैं। तो उनके लड़के का भी कॉल आया, उनकी बहू का भी कॉल आया मुझे, और उनकी भी यही रिक्वेस्ट है कि इसको किसी तरह से आप बैकडाउन हो जाइए। मैंने बोला है कि ना मैं लेता हूँ ना देता हूँ, पैसे का व्यवहार मैं कोई नहीं करता हूँ। ये स्पष्टीकरण इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पैसे की लालच भी दी जा रही है। इनडायरेक्ट शब्दों के अंदर है कि भाई इसको आप थोड़ा सा संभाल लीजिए, बैक कर लीजिए, जो उसके मन की शांति है उसके ऊपर ये हुआ है, जो गाली गलौच हुआ है जिससे वो डर गया है, घर परिवार उसका डर गया है, क्योंकि जान से मारने की धमकी अगर कोई देता है तो बट ऑब्वियसली कोई भी डरता है, तो इसको आप संभाल लीजिए, इसके ऊपर आगे कार्रवाई ना हो। मैं बोला ये सब मुझसे नहीं होगा भाई साहब, जो भी है मैं सत्य की लड़ाई लड़ूंगा। मेरे साथ पुलिस प्रशासन है, तो उनकी हेल्प लेके मुझसे जो भी अच्छा होगा मैं ये लड़के को न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा। तो धर्मेश जी देखिए, आपका घर है, आपकी फैमिली है, घर को भी देखना, ऑफिस, और उसके साथ साथ आप राजनीति से भी जुड़े हैं, तो ये वक्त कैसे, मतलब आपके सामने जब कोई ऐसी समस्या आती है या किसी की प्रॉब्लम आती है तो किस तरह आप सब चीजों को भूलकर बस उसी पे फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं? देखिए नॉर्मल समस्या तो आती है कि किसी से कुछ झगड़ा हो गया, किसी से कुछ हो गया, या किसी के घर में किसी ने कुछ परेशान कर दिया, छोटे मोटे तो बातें आती रहती है। उसके लिए तो समय देखिए निकाल ही लेता हूँ, क्योंकि मैं कुछ इस तरह से एक मेरी हैबिट है कि भाई जो तरह से ग्राउंड लेवल से मैं बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि किसकी कहाँ परेशानी है, कौन कहाँ दिक्कत में आ सकता है, तो वो समाज सेवा तो मैं करता हूँ, राजनीति के तौर पे भी करता हूँ, प्लस मेरा ट्रस्ट है उसके थ्रू भी करता हूँ। मगर ये जो आपने सवाल पूछा, इसका विशेष कारण ये है कि आज तक मेरी इतनी लाइफ के अंदर मैंने ये नहीं सुना है कि मैं एक सर्वेंट को जान से मार दूंगा। एक छोटी सी गलती कि उसने फोन पे बोला ओके अंकल, मैं 20 मिनट लेट आया, 20 मिनट लेट आया, उनके जो पिताजी थे वो नीचे मिले जो 85 इयर्स के हैं, उनको छोड़ने की एक घर पे जो काम करता सर्वेंट की फर्ज नहीं है, तो भी ये एक रिस्पेक्ट के खातिर उनकी, वो जो उनके पिताजी को छोड़ने गया और उनके ऑफिस कहीं जाते हैं वहां पर छोड़ के आया, रिक्शा में लेके गया, छोड़ के आया, फिर घर पे आया, तो उसने उसका फर्ज निभाया।
मगर 20 मिनट लेट आने से और ओके बोलने से अगर जान की धमकी देते, जान से मार डालने की, तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि इसके लिए मुझे टाइम वेस्ट करना चाहिए, मेरे को सोचना चाहिए। मुझे जो एट प्रेजेंट समझ में आया था उस समय पे मैं गया सीधा पुलिस स्टेशन और उसकी रिपोर्ट लिखवाई है, एनसी करवाई है, 504, 506 की कलम लगवाई है। तो उस लड़के के बाद, इस सब मैटर के बाद, पुलिस स्टेशन जाने के बाद पुलिस ने पुलिस स्टेशन में बुलाया, उसके बाद भी क्या इस जो सर्वेंट है उसे कोई कॉल या किसी तरह की धमकी बड़ी कॉल फिर उनकी तरफ से आई है? जी, अब तक तो उनको, लड़के को तो कोई कॉल्स नहीं आई है, मगर मुझे सेटलमेंट्स के कॉल आया है कि इसके अंदर देखो कि क्या हो सकता है। तो मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ और मैं हमेशा ये समझता हूँ, ना लेता हूँ ना देता हूँ, तो पैसे की लेन देन मुझसे होती नहीं है, ना मैं करता हूँ, ना मेरे वो ब्लड में है कि किसी का, गरीब का जान जावे, 2 पैसा ऊपर से उसको मिले और मुझे भी देने की वो बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट शब्दों के अंदर। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये उचित है, और ना मेरे जैसे लोगों को और जो समाज सेवा करते हैं हर तरह से उनको ये करना चाहिए। एक गरीब है तो उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि ये एक गरीब की बात नहीं है, 3 छोटे बच्चे, उनकी लड़के की वाइफ, 5 जिंदगी का सवाल है, प्लस उनके गांव में माता पिता है, वो 4 भाई है। तो ये आप देखने जाए तो करीबन एक की जान बचाने के पीछे करीबन 25-30 लोगों की जान बच रही है, घर परिवारों की। तो ये स्टेप लेने के लिए मेरे पास सोचने के लिए जरा भी टाइम नहीं था, जो मुझे उस समय पे समझ आया वो मैंने काम कर दिया। धर्मेश जी, अगर हम देखें आज के समय, पहले की नहीं लेकिन आज के समय पे मुझे लगता है एक सर्वेंट ही है जो पूरे घर को संभालता है, क्योंकि जो घर के जो हस्बैंड वाइफ हैं वो अपनी जॉब पे निकल जाते हैं, बच्चों को भी हैंडल कर लेते हैं, घर की भी चीजों को हैंडल करते हैं। आपकी नजर में एक सर्वेंट क्या है? देखिए, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे एक इंसिडेंट हुआ है, अगर आप गूगल सर्च करोगे तो मिस्टर पूनावाला, उनकी लिमोजिन जो ड्राइवर चलाते थे पिछले 35 साल से, जब उनकी डेथ हुई तो मिस्टर पूनावाला ने खुद ने उनकी बॉडी को गाड़ी में रखा, एज अ ड्राइवर खुद गए। तो आज हमारे पास गूगल है, हम मोबाइल के अंदर कोई भी चीज देखते हैं, सर्च करते तो मिल जाती है तुरंत बेस के ऊपर। हम बुराई देखते हैं बहुत सारी, कुछ अच्छाइयाँ भी देखने सीखो। और जैसे मेरे मम्मी ने मुझे सिखाया है कि एक अपने घर पे जो काम करता है वो अपनी गंदगी उठाता है, तो सबसे बड़ा भगवान अपने लिए वही होता है कि जो अपना दुख में काम आता है। बराबर है। तो मैं ये विषय के ऊपर बोलना चाहूंगा, वो आदमी अपने घर परिवार को चलाने के लिए काम कर रहा है, ना कि वो किसी को मारने काटने का काम कर रहा है। वो मेहनत की रोटी कमा रहा है, तो उसको भी अपने लेवल से ही देखो, उसको कोई जाति पाति ये सब मत देखो, अपने लेवल से देखो। वो आता है अपने पास, काम करता है, तो उसके सामने हम उनके लिए कुछ अच्छा कर सके, उसके ऊपर विशेष फोकस करना चाहिए। तो जिस तरह से आपने सुना कि धर्मेश जोशी जी का कहना है कि जो सर्वेंट है उसे परिवार का एक हिस्सा समझे, जिस तरह से आपका पूरा परिवार है और वो अपने सर्वेंट को कुछ इसी तरह देखते हैं, यही वजह है कि जब उनके सर्वेंट पे आपत्ति और कोई उन्हें इस तरह से टॉर्चर कर रहा था, गाली गलौज देके, यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी तक दिया जा रहा था, उस सर्वेंट के लिए वो घर से गाड़ी लेकर उस लड़के को लेकर पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे और 1-2 घंटे नहीं, कम से कम उन्होंने 8-9 घंटे इस लड़के को न्याय दिलाने के लिए वो दौड़ते रहे, क्योंकि उनका मानना है कि उनके यहाँ जो सर्वेंट है उनके परिवार का एक हिस्सा है। तो इस तरह से हर किसी को सोचना चाहिए कि अपने सर्वेंट को एक परिवार का हिस्सा मानते हुए उसको वही प्यार और प्रेम देना चाहिए, क्योंकि वो भी उनके लिए वही काम और उनकी इतनी चीजों को करता है और उसकी एक मजबूरी होती है, उसे अपना घर चलाना है। यही वजह है कि वो लोगों की बातों को सुन रहा है, वो काम कर रहा है, तो उसको भी समझा जाए। तो इसी तरह वो उसके न्याय के लिए लड़ रहे हैं और आगे भी अगर जरूरत पड़ी तो उसके न्याय के लिए वो फिर पुलिस स्टेशन उन्हें जाना पड़ा तो वो जाएंगे और फिर वहां पर बात करेंगे। तो बस आप हमारे साथ वही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए। सहयोगी नीरज के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज इंडिया, मुंबई।